when you want to gain knowledge, you have had a better communication skills. इवन अगर हम एजुकेशन सिस्टम की भी बात करें, दैट पीपल डोंट फोकस, आवर एजुकेशन सिस्टम डजंट फोकस ऑन मोस्ट ऑफ द स्किल्स. कि जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है, इट्स नॉट always about English language. See, it's very important. Whenever you open your mouth, it is just that when you will tell people that who I am. तो इट इज़ शैतान जो आपको बोल रहा है कि आपके पास अभी टाइम है, टाइम है, टाइम है. जिस तरह से कुरान में भी है कि ये तब तक बोलते रहेंगे टाइम है, टाइम है, एंड जब मौत इनको पकड़ लेगी देन बस. गलत फहमी है कि हम लोग ना वही दुनिया दीन बहुत कन्फ्यूजन में रहते. क्यों? अल्लाह ताला जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं क्या फिरौन के पास जाएं और उन्हें मेरी ये मैसेज पहुंचाए. अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी यहाँ पे, तो जो अल्लाह ताला की मैसेज है वो एज इट इज़ फिरौन तक नहीं पहुंचेगी. इंस्पायरिंग कॉर्नर में हम लोगों का जो फोकस है वो मोस्टली है कि हम लोगों को बताएं कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं. एक बेटर स्पीकर बनने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट. इवन अगर उनको हम उर्दू में भी बात करने को बोलते हैं, वो उर्दू का तलफ़ुज़ भी हमारा अभी ठीक नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि हाउ हैप्पी आई एम कि आई वॉज एबल टू टॉक विद यू, शेयर माई आइडियाज़ विद यू. डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी. As you guys are aware that we are having a series Skill Up. Today we are going to have the second episode of that, and the focus of today's episode will be about communication skills and how important they are in modern day age. Without taking much of your time, I am directly going to take you to our guest. His name is Lone Umaad. He is with us in our studio. Assalamu alaikum brother. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इनविटेशन कबूल की और हमें अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के एज ए यंग पर्सन. सो टुडे बिफोर वी विल गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस टू आवर ऑडियंस about you, to brief about yourself. Yes, definitely. Accept my heartfelt gratitude for inviting me on your podcast. I am highly humbled right now that I will be sharing whatever knowledge I have with you and with our audience. I am Umaad Ayyub, an engineering graduate who loves to make tech talk understandable. As a teacher, a mentor, and an active professional in field of engineering and science, I have honed my communication skills in order to bridge the gap between complex technical terms and effective learning. That's what we will be talking here about. That's great, brother. So before we're going to start the communication about the topic that we have today, which is about communication only. Absolutely. आप मुझे communication का मकसद क्या है, इसको हम किस प्रोसेस के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे, इसके बारे में अगर आप मुझे थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें, so that they can understand the lineage that we are going to discuss in the coming time. बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपने क्वेश्चन किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल कॉल इट लाइक वाई. ओके, देयर इज अ टर्म वी कॉल इट एज योर वाई शुड बी वेरी क्लियर. वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, why should be clear. So why we have chosen the word communication, or why we have chosen communication skills in particular. The first reason why we have chosen the communication skills is to gain knowledge. First of all, the most prominent important factor is to gain knowledge. When you want to gain knowledge, you have had a better communication skills. Secondly, if you want to increase your confidence, you have to have work upon your communication skills. That's where you get confidence from. Then if you want to build fruitful relationships, whether with your spouse, whether it's your brother or sister, whether it's your parents, teacher, students, wherever you want to build relationships, you need to have effective communication skills. Then comes team building. Whether you are going to in your career, you want your career advancement, so you have to build effective communication skills. So your why should be very clear, why you want to learn communication skills, why you have to learn communication skills. This is something कि जिसको हमें लेके चलना है कि हमें communication skills क्यों सीखनी है. तो कुछ points मैंने यहाँ पे आपको बताए, इनको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि ये points क्या है. अब जो आपने पूछा कि communication क्या है, तो जैसे हमें अगर इसको सिंपल ले लैंग्वेज में पुट करूँ कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज सिंपली इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स. हम यहाँ पे आप और मैं बैठे हुए हैं, आप और मैं जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, दैट्स अ कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन एक प्रोसेस के थ्रू होता है.
वो प्रोसेस को भी हम समझेंगे। तो वो जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कम्युनिकेशन में आपके पास पहले सेंडर होना चाहिए। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आई विल बी अ सेंडर, और जो मैं बात कर रहा हूँ दैट्स योर मैसेज, कि मैं कौन सा मैसेज देना चाहता हूँ, दैट्स सेकंड पॉइंट। एंड देन देयर इज अ चैनल, कि बात किस तरह से जा रही है। अभी हम फेस टू फेस है, दिस इज़ वन काइंड ऑफ चैनल। अगर हम वीडियो कॉलिंग पे होते दैट वाज अनदर काइंड ऑफ चैनल। अगर हम फ़ोन पे होते दैट वाज अनदर काइंड ऑफ चैनल। सो दिस इज़ चैनलिंग। देन देयर इज़ रिसीवर, जो मैसेज को, जिसके पास ये मैसेज जाएगी, दिस टाइम इट्स यू एंड आवर ऑडियंस, जिनके पास ये मैसेज जा रहा है। देन देयर इज एंड लास्ट थिंग इज फीडबैक। जब आपके पास मेरा मैसेज पहुंच गया, अब मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा मैसेज आपके पास पहुंच चुका है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फीडबैक। जब आप मुझे फीडबैक दोगे कि हाँ मुझे आपका मैसेज समझ आ गया है, दिस इज सिंपली कम्युनिकेशन। इसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो ये जब आपने कम्युनिकेशन के बारे में बात की, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, मोटिव क्या होता है, क्यों हमें कम्युनिकेशन सीखना इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने पर्पस इसका बता दिया, आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आप मखसूस स्पेसिफिकली विच लैंग्वेज वी आर टॉकिंग अबाउट, जिससे हमें ये पता चल जाए कि अगर हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपना होल्ड अच्छा बना लेंगे, इट विल हेल्प अस नॉट ओनली इन अंडरस्टैंडिंग बट आल्सो इन व्हाट वी कॉल्ड एज इन द मॉडर्न एज in advancement of our career, as well as if I am a student, in that aspect it will build my confidence, as you said in the beginning. So can you just link up how important it is to understand English as a medium of communication? Absolutely. जो आपने ये क्वेश्चन किया कि किस लैंग्वेज पे मोर फोकस होना चाहिए, तो इसको मैं दो तरीकों से आंसर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, जैसे अभी हम दोनों ने जब बात की, स्टार्ट की कम्युनिकेशन स्किल्स की, सबसे पहले चीज़ आपने मुझे भी देखा होगा, मैंने इंग्लिश में बात की। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो ऐसी लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, अब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इट्स ऑब्वियसली, तो सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस करना है वो इंग्लिश पे करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक पॉइंट और भी बोलना चाहूँगा कि जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। कम्युनिकेशन आप विदाउट वर्ड्स भी कर सकते हो। आपके पास मैं एक स्टैट्स अगर मैं दूंगा, फॉर्मूला हम उसे बोलते हैं 7-38-55। एक फॉर्मूला है जहाँ पे बताया जाता है कि ओनली 7% ऑफ व्हाट वी कम्युनिकेट इज विद वर्ड्स। जो हम बातें करते हैं, चाहे हम अपनी कश्मीरी लैंग्वेज में करेंगे, उर्दू, हिंदी या इंग्लिश में करेंगे, इट्स ओनली 7%। देन देयर इज 38% जो कि वर्बल होता है, एंड देन देयर इज 55% जो कि नॉन वर्बल होता है। आपके जेस्चर्स बताते हैं कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। कभी कभार होता है आप जो बात कर रहे होते हो, आपके जेस्चर्स जो होते हैं ना, वो कुछ और डिपिक्ट कर रहे होते हैं, कि आप बात कुछ और कर रहे हैं, आपके जेस्चर्स आपके रिसीवर को कुछ और बता रहे होते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज के टाइम पे और पर्टिकुलरली अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, तो आज के टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप बात करते हैं ना, तो इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपके पास वो अथॉरिटी देती है। जब आप किसी रूम में जाओगे और वहाँ पे जब आप किसी से बात करोगे, और वहाँ पे एक बंदा होगा जो इंग्लिश में बात करता होगा, No, it creates a kind of impression automatically. हाँ, उसका इम्प्रेशन बढ़ जाता है। एंड वी से ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट ऑलवेज द लास्ट, बट इज द लास्टिंग इम्प्रेशन। वो बंदा आपको जिंदगी भर याद रहेगा, हाँ ये वो बंदा था, इसने सबके सामने इंग्लिश में बात की थी, है कि नहीं? तो इसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम करेंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस होगा। जो भी अभी हमें सुन रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए भी ये चीज़ है कि इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करें। सबसे पहले जब आप आएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, तो सबसे पहले आप इसको अपनी मदर टंग में ही एनहेंस कीजिए। क्योंकि आप सबसे पहले अपने जेस्चर्स को ठीक कीजिए, आप सबसे पहले अपने टोन्स को ठीक कीजिए। आप देख रहे होंगे कि मैं जब कोई बात कर रहा हूँ ना, तो कहीं पे मैं वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ। ये जो फोकसिंग है, इसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, या टोन में चेंज कर रहा हूँ कभी कभार, ठीक है। अगर अभी मान लो अभी मैं ऐसे बैठ जाऊँगा, ठीक है, आपको मजा आएगा मेरे साथ बात करने? Obviously it will whether if you are speaking rightly but your body language does not denote that. हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे होते हैं, इट विल डिपेंड कि यार इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन व्हेन आई एम लाइक दिस, यस
एंड और मैं एनर्जेटिक भी हूँ, तो इट विल क्रिएट अ इमेज ऑफ मी दैट यस ही वांट्स टू टॉक अबाउट इट. सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स में. तो जब भी आप बात करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज को तो सीखना ही सीखना है. एंड देन हेयर कम्स वन मोर थिंग, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन आ गई. अब जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इसमें, तो अब पहले हम वर्बल में आएंगे. तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपका लैंग्वेज में ग्रामर पे आपको होल्ड होना चाहिए, बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए आपका ग्रामर पे. और इसी के बाद रिटन कम्युनिकेशन में जब आप जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो रिटन में, तो वहाँ पे भी आपका ग्रामर पे बहुत ज़्यादा होल्ड होना चाहिए. क्योंकि जब आप बात कर रहे हो ना, बात करते समय अगर आपका ग्रामर ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स फाइन एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. लोग इतना फोकस नहीं करते. बिल्कुल, क्योंकि आप अपने जेस्चर से भी बता सकते हो कि आप कौन सी बात करना चाहते हो. लेकिन व्हेन इट्स रिटन कम्युनिकेशन, बंदा आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. और आगे हम बात करेंगे करियर के बेसिस पे. हाँ, करियर एडवांसमेंट में हम आगे बात करेंगे. तो वहाँ पे करियर में अगर आपने कोई रिटन डॉक्यूमेंट दिया और उसमें ग्रामर में मिस्टेक्स थे, इट विल बी काउंटेड एज अ डाउनफॉल एंड आपका करियर में एडवांसमेंट रुक सकता है उसकी वजह से. तो ये बहुत फोकस है इस पे हमारा होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है. जो आपने बात की, इससे हमें ये पता चला कि कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात की. मोस्टली फोकस अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज अ इन द मॉडर्न डे एज. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हेनेवर यू स्पीक, आपने एग्जाम्पल भी दी. इन टॉकिंग अबाउट मोस्टली अबाउट कश्मीर, इस हिसाब से अगर हम फोकस करें कि वी हैव सीन दैट पीपल डोंट मोस्टली फोकस. इवन अगर हम एजुकेशन सिस्टम की भी बात करें, दैट पीपल डोंट फोकस, आवर एजुकेशन सिस्टम डजंट फोकस ऑन मोस्ट ऑफ द स्किल्स. अगर आप उनको साइंस पढ़ाते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, व्हाटएवर द अदर सब्जेक्ट्स आर, आप उन पे बहुत ही अच्छा उनको फोकस करते हैं. इंग्लिश को नेग्लेक्ट किया जाता है. उसके रीजन्स भी दिए जाते हैं. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप कर लोगे. आपको ग्रामेटिकली में यार यू हैव टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू राइट डाउन सच काइंड ऑफ. हाँ, हो जाएगा पास, ठीक हो जाओगे. इन मोस्टली 11th-12th में उन बच्चों को फोकस नहीं करवाया जाता है. ऑल्दो अगर हम बताएंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अब फोकस किया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, बट इट टेक्स अ टॉल ऑन द पीपल जो कि मिडिल क्लास में या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं. सो हाउ डू यू कनेक्ट दैट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम वेयर जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स जो है मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स जो फोकस नहीं करते हैं ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज? How do you connect into that? What kind of, what do you think should be the most important factor that can help those students जो already अब उन स्कूलों से निकले हैं but don't have that same education, same communication skills? उनके लिए आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे and how do you connect that, how important it can become in the future for them? तो ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, इसको मैं बहुत ही पर्सनली लूँगा, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ. मिडिल मेरा हुआ था प्राइवेट स्कूल से, देन आई वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल, 2 गवर्नमेंट स्कूल 10th तक, देन 12th तक. तो जब हम गवर्नमेंट स्कूल में एंटर होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स आपके साथ इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, इवन कि वो उर्दू में भी बात नहीं करेंगे. अब तो हो रहा है कि अब थोड़ा बहुत चेंजेस आ रही हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी भी नहीं हो रहा है. तो पर्सनली मैं कब आया कम्युनिकेशन स्किल्स में, मैंने कब अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस किया? जब मैं 12th करके निकला यहाँ से, क्योंकि 12th में हमें बताया गया आप साइंस स्टूडेंट्स हो, आपको नहीं चाहिए इंग्लिश, नहीं पढ़ना है आपको इंग्लिश पे, बस क्लासेस आप 2 इंग्लिश के, आप खुद से पास कर जाओगे. लेकिन यही होती है सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं 11th-12th में, कि हम इंग्लिश को फोकस नहीं बनाते हैं, हम इंग्लिश के ऊपर काम नहीं करते हैं. क्योंकि इंग्लिश जो है ना, ये एक सिर्फ सब्जेक्ट पास करने के लिए नहीं है. इट एनहेंसेस हाउ यू टॉक, it enhances your vocabulary. Okay, it gives you things to talk about. जब आप पढ़ोगे ही नहीं, एक बेटर स्पीकर बनने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू हैव टू रीड. जब आपने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं टीचर से, तो आप कैसे इसको आगे लेके जा सकते हो? फिर जब मैं एंटर हुआ कॉलेज में, तो कॉलेज में जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा हर कोई बच्चा इंग्लिश में बात कर सकता है, आगे जाके स्टेज पे आ जाता है, इंग्लिश में बात कर लेता है. तो आई वॉज लाइक यार मैंने तो ये सब चीज़ें सीखी ही नहीं है. देन देयर वॉज वन मैम, मुझे आज भी उसका नाम याद है. क्यों? क्योंकि उसने हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे उसने काम किया था. वो हरियाणा से थी, आप समझ सकते हो हरियाणा से उनका लैंग्वेज, उनकी एक्सेंट कैसी होते हैं. लेकिन जब आप उसके साथ बात करते यू वुड थिंक ये शायद USA से आई है,
ऐसा था उसका एक्सेंट, इतना काम उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे किया था. दैट टाइम आई गॉट कि जब ये कर सकती है, शी इज़ फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम कश्मीर, और हमारे अंदर MTI उतना ज़्यादा नहीं होता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस जो होता है वो हमारे अंदर उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं भी कर सकता हूँ. तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने की स्टार्ट की. लेकिन वहाँ पे भी फिर मैंने देखा मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे जो आए थे जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी या जिन्होंने अपनी इंग्लिश पे काम नहीं किया था. इवन की कॉलेज खत्म होने के बाद भी या आज भी आप देखोगे किसी ने PhD भी किया होता है, कोई मास्टर्स भी करके होता है, किसी ने MPhil MPed भी किया होता है, या कोई अभी टीचर पढ़ा भी रहा होता है, लेकिन उसको इंग्लिश में बात करनी भी नहीं आती है. स्टूडेंट्स आज आप देखोगे प्राइवेट स्कूल्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो चुकी है कि इंग्लिश मीडियम बना दिया है, सब जगह पे इंग्लिश में ही बात करनी है. उन टीचर्स का क्या, उन ग्रेजुएट्स का क्या, उन PhDs का क्या जिनको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई ये सोचे कि ये ऐसा स्किल है जो इनहेरिटेड स्किल होता है कि मुझे बचपन से ही था तो अब मैं नहीं सीख सकता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मैंने पर्सनल एग्जांपल दी कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने कॉलेज लेवल में ठीक किया है. ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स को पास आउट होने के बाद, अपना करियर लेने के बाद, तब उन्होंने स्टार्ट किया है इंग्लिश बोलना. तो जैसे मैंने अपनी मैम की एग्जांपल दी आपको, हरियाणा से बिलोंग करती है, फिर भी उनका एक्सेंट था USA के जैसा. सो इट्स समथिंग दैट इज लर्नेबल. आप इसको सीख सकते हो. कैसे? अब मसला है इसको सीखेंगे कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन. आपको अगर किसी भी लैंग्वेज में बात करनी है ना, तो उस लैंग्वेज को आपको सुनना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन, यू हैव टू पे वेरी अटेंशन टू द लिसनिंग. आपको सुनना है उस चीज़ को. देन यू हैव टू रीड अलॉट. जितना आप उसको पढ़ोगे आपके अंदर वोकैबुलरी बिल्ड होगी. बात जब हम करते हैं, बात कैसे करते हैं? वर्ड्स होंगे तभी आप बात करोगे. तो जितना आप पढ़ोगे आपके पास वोकैबुलरी आ जाएगी. आप सुन भी रहे हो, वोकैबुलरी भी आ जाएगी. देन यू हैव टू स्पीक इट. उसके बाद आपको इसको स्पीक भी करना. आपने सुना और आपने पढ़ा भी, लेकिन अगर आपने वर्ड्स को स्पीक नहीं किया, वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं किया, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश करते हैं तो इट लुक्स लाइक ये जैसे कश्मीरी में बात कर रहा है. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने जो वर्ड्स की जो प्रैक्टिस होती है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, उस पर उन्होंने काम नहीं किया होता है, उस पर फोकस नहीं किया होता है. बिल्कुल हर किसी, जो भी आपकी मदर टंग से हट के जो लैंग्वेज है आपकी, चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, आप जब उस पर फोकस नहीं करोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे, इट डिपिक्ट्स कि आपने अभी आपने इसको सीखा नहीं है. देन देयर कम्स प्रैक्टिस. फिर आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस कैसे करनी है? यू कैन, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, अगर आप शर्मीले हैं, आपको शर्म आती है, ठीक है, आप जाके मिरर के पास जाओ. ठीक है, यहाँ से आने से पहले आई ऑल्सो डिड अ मिररिंग सेशन फॉर मी. जब मैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, उनके जैसे मैंने पहले ही बोला कि आई एम अ टीचर एज वेल. जब भी मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाना होता था तो सबसे पहले मैं घर पे, मैंने बोर्ड लगा के रखा है, मैं घर पे एम्प्टी रूम है तो वहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था, उसके बाद मैं क्लास में जाता था पढ़ाने. क्यों? यस, इट गिव्स योर कॉन्फिडेंस लेवल. ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है कि या आप बहुत अच्छा कर सकते हो. तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 4 चीज़ों पे फोकस करना है. आपको लिसन करना है, बहुत ज़्यादा सुनना है, आपको रीडिंग करनी है, उसके साथ आपको इसको ये प्रैक्टिस भी करनी है. राइटिंग भी आ जाएगी इसमें, आप राइट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद इसको बोलना है आपको. एंड देन कुछ इसमें टिप्स है, मिररिंग आप कर सकते हो. आप किसी अपने फ्रेंड को आगे ले सकते हो, वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, आप उसको यहाँ से आंसर करोगे. तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको एनहेंस कर सकते हैं. ड्यूरिंग योर एक्सप्लेनेशन आप बता रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD किया होगा या कोई मास्टर्स डिग्री की होगी. इवन दोज जो कि B.Ed MPed वगैरह करते हैं, जो स्पेसिफिकली एलिजिबल हो जाते हैं फॉर टीचिंग जॉब, उनमें हम अभी भी कम्युनिकेशन का इशू देखते हैं और उनमें अभी भी इंग्लिश मोस्टली वो फोकस नहीं कर पाते हैं, अभी भी इंग्लिश में वो बात नहीं कर पाते हैं टू पास ऑन देयर मैसेज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी बंदा है जिसने PhD किया हो या कोई मास्टर्स डिग्री की हो, इन टुडेज़ वर्ल्ड अगर उसको कहीं पे जाना हो और उसको अपना एक इम्प्रेशन जमाना है या इम्प्रेशन ऐसा बताना है कि दैट शुड बी अ लास्टिंग इम्प्रेशन, एज यू सेड, कि अगर मैं बात करूं so it should create an impact what I say, and it should actually create that clarity in the minds of the people who are listening. वो जब English में बात करेंगे, because see, it's very important whenever you open your mouth, it is just that when you will tell people that who I am. If you have a PhD degree, you have a master's degree, or you have done anything in your life, and then you went
I'm giving an example in the job market. I will relate it to that. You are a PhD scholar, or you have already done a PhD. That means you have done a doctorate degree. If you have a master's degree, and then you go and for a job interview, and they are asking you, just introduce yourself. I have seen people, to be very honest with you, that they are still don't understand that, when you ask them this question, just brief me about yourself. They are completely blank. They just tell me, my name is this, I have done this, I have done masters in this and that, and then still after that it is just that what we call it as वो रट्टा मार के आते हैं और उनको फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता है. Obviously when you go for a job interview, it means कि आपको इंग्लिश में बात बताना है अपने आप को, और या अगर आप उर्दू में भी बता रहे हैं, you should have the clarity of that. वो लोग वो नहीं कर पाते हैं. So it shows that how much irrelevant we have become when it comes to the current job market demand and the skills we have. So I just wanted you to tell me, what should we as people do, or those who have already done the degrees but don't have this communication skill, so that they can kind of have a lasting impact whenever they go and apply somewhere at that particular period of time. What is your advice, or what kind of suggestions you can give to those students or those people who are searching for jobs but don't have the communication skill, especially English? What should they do? What kind of channels they should use so that they can enhance this skill and can become relevant in the current job market? जैसे आपने बात की कि जॉब मार्केट के रिलेटेड, मैं उसको बहुत ही अच्छे से फील कर रहा था जब आप ये चीज़ बोल रहे थे. क्योंकि आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंड सो फार आई हैव अटेंडेड 3 interviews. Alhamdulillah, I have qualified all the 3 interviews, and I have secured my position in those companies as well. Though I have not worked for a long time for them, but Alhamdulillah, I was able to secure those 3 positions. That was just because of my communication skills. I will answer this like this. One of my interview experience, when I went to interview, it was very simple. एक बोर्ड था पीछे, उस पे सेंटेंसेस लिखे हुए थे, ठीक है. एंड द इंटरव्यूअर फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड, क्या जैसे आपने बोला पीएचडी करके होते हैं, देन दे आर नॉट इवन एबल टू brief themselves about themselves. वेरी गुड. तो उन्होंने बोला कि ओके, गिव मी योर इंट्रोडक्शन वेरी क्लियरली, क्योंकि मैंने प्रेप करके गया था. मैं उसको पहले उसको प्रेपरेशन करके जाना होता है कि मुझे क्या बोलना है वहाँ पे. तो मैंने पूरी तरीके से प्रेपरेशन करके गया था. आई ब्रीफ्ड हिम अबाउट माई सेल्फ. आई वुड से कि ही वॉज वेरी मच अमेज्ड एंड ही वॉज लुकिंग क्वाइट गुड विद हिज फेशियल एक्सप्रेशंस. आई कुड सेंस इट दैट कि इसके ऊपर इंप्रेशन बन गया है, अब ईजी है इंटरव्यू. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ओके ठीक है, तो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप पढ़ो. एंड आई वॉज लाइक, अच्छा ये पढ़ना है. बहुत ही ईजी सेंटेंसेस थे, ठीक है, बहुत ही ईजी सेंटेंसेस थे, एंड आई रेड देम ऑल. ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. देन वी वेंट. उसके बाद हमारा एक टेस्ट हुआ, इंग्लिश टेस्ट होता है कंपनीज में आज, तो उससे भी बहुत टेस्ट्स होते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं और एक बात बोलना चाहूँगा. एक सर्वेज होती है ना, जैसे सर्वेज होती है, तो सर्वेज हुई है मॉन्स्टर नाम की एक कंपनी है, ओके, जो कि जॉब्स के लिए फैमिलियर है बहुत ज़्यादा. तो उन्होंने एक ये सर्वे किया है. तो सर्वे में पता चला है कि 87% ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है ना, मोस्टली 87 to 89% स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, 87% स्टूडेंट्स जो है, जो ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनकी. और जब देखा गया कि ये डिफ़िकल्टी किस वजह से आती है, उनके पास हार्ड स्किल्स होते हैं. ठीक है, हार्ड स्किल्स जिसको हम बोलते हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन में सीखे हैं, टेक्निकल स्किल्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम अपनी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में, जैसे कोडिंग किसी ने सीखा, मार्केटिंग किसी ने सीखा होगा, किसी ने सेल्स सीखा, जिसमें आप कंप्लीट क्लासेस लेते हैं एज दैट. तो वहाँ पे पता चला कि ये हार्ड स्किल्स नहीं है जो उनको पीछे रख रही है, इट इज़ सॉफ्ट स्किल्स. और सॉफ्ट स्किल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन में भी कंपनीज चाहती है कि आपके अंदर इंग्लिश बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि आपको इंग्लिश बोलना आनी चाहिए. ठीक है, आपको आना चाहिए कि आप इंग्लिश में कैसे बात करोगे. अब मसला है कि कंपनीज क्यों चाहती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा. ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास हार्ड स्किल्स है. जैसे मैंने भी बोला, 2 टाइप ऑफ स्किल्स होते हैं, एक है हार्ड स्किल्स, एक है सॉफ्ट स्किल्स. हार्ड स्किल्स होगी आपके, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, आपकी मैथ्स में कोडिंग है, कंप्यूटर साइंस से, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज आ गई. ठीक है, आप सिविल से है तो आपकी सिविल की नॉलेज आ गई. इवन आप आर्ट्स से हैं तो आपकी जो आर्ट्स की नॉलेज है वो आ गई. वो हार्ड स्किल्स होते हैं. देन द सॉफ्ट स्किल्स है आपकी जो इनहेरिटेंस या आपकी जो एज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो आप हो, वो स्किल्स आपके अंदर, काम करने के स्किल्स. एक है कि काम, दूसरा है कि आप उस काम को कैसे करोगे, वो स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए. तो कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे करती है. और
ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कंपनी के अंदर जाते हो, यू हैव टू डू टीम वर्क। एट वन पॉइंट यू विल बी अ टीम लीडर, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसा नहीं है कि दो बंदे होंगे, अगर हम भी अभी बहुत सारी बातें करेंगे, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल बी देयर, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वहाँ पे। देन रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, क्योंकि कंपनीज में आप जाओगे, अपने टीम लीडर से, अपने क्लीग से आपको रिलेशनशिप बनानी है, बॉस के साथ रिलेशनशिप बनानी है, ओके। देन देयर आर वी से इट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वी हैव टू नेटवर्क, वी हैव टू मेक नेटवर्क्स, आपको नेटवर्क बनानी है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो कंपनीज है ये चाहती हैं कि एक एम्प्लॉय के अंदर ये चीज़ें हो। और अगर आप अब आपके पास ये चीज़ें नहीं है, आपके पास हार्ड स्किल है, अब कंपनी आपको भेज रही है यहाँ से दूसरे देश, ठीक है, आपको वहाँ पे कंपनी का मॉडल एक्सप्लेन करना है, आप जहाँ जो काम कर रहे हो वो आपको एक्सप्लेन करना है। सो यू शुड हैव द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। आपके पास, हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था बोलना, वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेशन में जो है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स में, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हमें क्यों चाहिए होती है, आप अपनी थॉट्स को, आप अपनी फीलिंग्स को, और आपके पास जो आइडियाज़ है और आपके पास जो इमेजिनेशन है, उसको आप किस तरह से बाहर किसी और के सामने लेके आते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड इन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर्स एस्पेक्ट ऑल्सो, कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। देन जब भी आप उसके सामने बात करेंगे, यू नो कि इस बंदे को, आपको ये अंडरस्टैंडिंग भी कम्युनिकेशन में होना चाहिए कि जो मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश और इन हिज नेटिव लैंग्वेज, मुझे ये पता होना चाहिए कि किस तरह इसको डिकोड करेगा, या हाउ ही विल एक्चुअली गेट दैट मैसेज वेरी क्लियर। अभी देखिए, जब जैसे हम बात कर रहे थे जॉब मार्केट की, तो ये जो चीज़ है, आपके पास थॉट है, आपके पास आइडिया है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपको वो इफेक्टिवली किसी और को ट्रांसफ़र करनी नहीं आ रही है, ठीक है, आपको आ ही नहीं रहा है कि आप किसी और को समझा सको। उस नॉलेज का फ़ायदा क्या है आपके पास? कोई फ़ायदा ही नहीं। कंपनी आपको हायर ही क्यों करेगी? इसीलिए आप देख रहे हो आजकल के वर्ल्ड में, जो कि हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, देख रहे हैं हम कि एक जगह से PhD वाला स्टूडेंट है और एक जगह से 10th वाला स्टूडेंट है, ठीक है। when it comes to communication skills, 10th वाला स्टूडेंट है, ये 10th में भी पढ़ रहा है एंड इट्स डूइंग सेल्स के काम भी ये कर रहा है, ठीक है, ये घर बैठे वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो PhD वाला है वो अपना जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहा है। रीज़न सिर्फ इतना ही है क्योंकि 10th वाला जो बंदा है, इसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस किया है, इसको पता है मुझे अपना आइडिया किस तरह से दूसरे तक पहुंचाना है, मुझे किस तरह से अपना थॉट दूसरे तक पहुंचाना है, लेकिन इसने अभी तक उसके ऊपर काम नहीं किया है। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी भी टाइम है। जो भी हमें सुन रहे हैं ना, कि जिसको लग रहा होगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी टाइम है। यू कैन एनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट जस्ट नीड्स योर स्ट्रॉन्ग वॉइस, दैट यू हैव द स्ट्रॉन्ग वॉइस। अगर आपको काम चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए, सिक्योर करनी है अपनी जॉब, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनीज क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रही है। तो जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपसे ही मैं पूछता हूँ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन अभी चला रहे हैं, ठीक है, तो आप ही अब मुझे बताइए कि आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ना, तो इसमें कम्युनिकेशन की क्या इफेक्टिवनेस रही है, ठीक है, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक सेशन करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो जैसे हम इंस्पायरिंग कॉर्नर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंस्पायरिंग कॉर्नर में हम लोगों का जो फोकस है वो मोस्टली है कि हम लोगों को बताएं कि हम पीछे क्यों रह जाते हैं, क्यों एक PhD वाला बंदा है वो घर पे बैठा हुआ है, MPed BPed वो सारी डिग्रियां करके घर पे बैठता है, उसकी वजह क्या है? क्या हम उसको कभी पूछने जाते हैं कि आपको क्या वजह है जो आपको रोक रही है? देयर मे बी 2 एस्पेक्ट्स। वन इज कि वो फोकस कर रहा है कि मुझे ना गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना है, एक तो वो है, हम उस एस्पेक्ट में अभी नहीं जाएंगे बिकॉज ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है हमारे कश्मीर में। लेट्स से वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। सेकंड है कि बंदा ना खाली इसकी वजह से घर पे नहीं बैठा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ है जो उसको रोक रहा है। उसमें हमें रियलाइज हुआ इंस्पायरिंग कॉर्नर की पूरी टीम में, जब हमने बातें की, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ कश्मीर, जब हमने रियलाइज किया, हमने बोला कि इतना ही नहीं है कि लोगों को बस गवर्नमेंट जॉब की फिक्र है, वो काम करना चाहते हैं, बट जब वो कहीं
अप्लाई भी करते हैं उसकी उनकी रिजेक्शन की का जो रेशो है बहुत ही हाई है। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट साउथ कश्मीर। उसकी वजह यह है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। इट इज़ नॉट मोस्टली बिकॉज ऑफ इंग्लिश। इवन अगर उनको हम उर्दू में भी बात करने को बोलते हैं, वो उर्दू का तलफ़ुज़ भी हमारा अभी ठीक नहीं है इन जनरल। पर्टिकुलरली किसी इंसान का ठीक हो सकता है, उसमें भी हम अपने आप को ना बता नहीं पाते हम कौन है, हम क्यों आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं। और इवन कहीं से भी किसी भी लैंग्वेज में, इवन नेटिव लैंग्वेजेस में भी अगर आप देखेंगे ना, किसी को बोलेंगे ना कि आप है कौन, मतलब सिंपल आई विल टेल यू, आई विल आस्क यू ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ। मैं आपको उर्दू में पूछूंगा कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, तो मुझे बताएगा कि वो मुझे अपना नाम और अपना प्रोफेशन, मैंने कौन सी डिग्री से, बस उसको ये नहीं पता कि मुझे इंटरेस्ट किस में है, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके कौन सा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ और मैं कैसे उन चीजों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। दैट इज वेयर द एक्चुअल और द रियल प्रॉब्लम लाइज। पीपल आई हैव सीन in my area and I have been to, spoken to so many people. जब उनसे बात करते हैं ना, they don't take this very seriously. They are thinking like we have done the degrees and that is going to take us anywhere. And they don't realize it कि, it's outdated at this moment of time if you don't have communication. There is so much that has, that's happening around the world and we are not aware of that. And communication जो है कितना important factor है, मतलब हर किसी को पता है, लेकिन कोई इस पे काम ही नहीं करना चाहता। इतने लेजी हो चुके हैं हम, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस कम्युनिकेशन स्किल इफ वी लर्न इट कैन टेक अस टू एनीवेयर। अगर हमें डेफिनेटली सीखना है, कम्युनिकेशन का इतना ही मतलब नहीं होता है। व्हाई वी हैव सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन द रिलेशनशिप्स, पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। इसकी वजह क्या है? अगर मैं अपने भाई के साथ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात बहुत केयरफुली सुन रहे हैं, इवन मैं कश्मीरी में बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में भी हम दोनों ने प्रेफर किया कि हम दोनों बात करें। जब मैं आपसे ये बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे सुनते हैं, फिर आप मेरी मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप मुझे आराम से जवाब देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? जब हम किससे बात करते हैं, बिना समझे वो कंप्लीट बात, बिना समझे वो वहां से जवाब दे देता है, यानी कि उसका वो रेस्पॉन्स नहीं होता, वो रिएक्शन होता है। और जब वो रिएक्ट करता है ना, और उसको पता ही नहीं होता मैं बोल क्या रहा हूँ, एंड ही और शी बिकम्स इरिटेटेड। जब वो इरिटेशन में आ जाती है, एंड दैट रिलेशनशिप का जो है वो गैप बढ़ जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाती है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। सो कम्युनिकेशन does not only help you in securing, being relevant to the present world, it also helps you to build and create great relationships within your families. ये हम लोगों को, so the purpose of choosing this communication by our organization as a topic to help people कि आप लोग समझो कि communication का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस कुछ बोल दो। communication का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना, डिकोड करना, फिर रेस्पॉन्स देना आराम से, सोच समझ के, ताकि हमारे सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बंद हो जाए, कम हो जाए। सो इट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एस्पेक्ट ऑफ ऑल, अदर देन बीइंग, अदर देन हेल्पिंग यू इन एडवांसमेंट ऑफ योर कैरियर। बिल्कुल। तो यहाँ पे जब आपने बात की अब कि ठीक है, तो हमें अब यहाँ से पता चला कि मोटिव आपका क्लियर है कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्यों काम करना है। इसी तरह से जो भी हमें सुन रहे हैं ना अभी, तो उन्हें भी पता होगा कि हमें क्यों करना है काम कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इट विल टेक पेन्स, इट रिक्वायर्स पेन, यू हैव टू गो थ्रू द पेन फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू वांट इन लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू पेन। उसके लिए पेन चाहिए ही होती है। आप 4 साल कॉलेज में लगाते हो, व्हाट्स दैट, यू आर गोइंग थ्रू पेन। तो आप उसके बाद कोई और डिग्री कर रहे हो, तो हर किसी स्किल को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे आपने बात की कि कम्युनिकेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे अभी हम दोनों बात करें, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा अभी यहाँ पे, तो इट विल डिपेक्ट कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, इसको जैसे घसीट के लाया है यहाँ पे कि बैठो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन व्हेन आई एम लाइक दिस, मैं बहुत ही काम हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इट डिपेक्ट्स कि नहीं, ही इज़ इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है। तो ये मुझे एक पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है ये चीज़ कि कम्युनिकेशन में जेस्चर्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेस्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेस्चर्स में आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं। जब आप किसी के साथ, यहाँ पे एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप अपने भाई के साथ बात कर रहे हो खुश दिली के साथ और मुस्कुरा के साथ, और आपका जो ये फोरहेड है ये अच्छे से बढ़ा हो, इस पे जो बिल्कुल ये चमकना चाहिए, मतलब इट शुड डिपेक्ट लाइक कि ये बहुत खिलखिला हुआ है, खुश हुए हो। इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है कि हमें किस तरह से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को रखना
हैं। तो ये जो गेस्चर्स है, गेस्चर्स मोस्टली क्या होता है कि आपके जो हैंड्स है इनकी पोजीशन कहाँ पे है। अगर आपने हाथ में कुछ पकड़ के रखा है, इट मेक्स यू फील कि जो ऑडियंस है आपकी या जिसके साथ आप बात कर रहे हो, आपने हाथ में कुछ पकड़ के रखा है। लेट्स सपोज मैं अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन रखूँगा ऐसे, इट मीन्स कि आई एम वेरी नर्वस, इसलिए मैंने इस चीज़ को पकड़ के रखा है ऐसे। और अब अगर मैंने अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड करके रख दिया और पीछे बैठ गया, इट मीन्स कि आप करो, बात कर रहे हो, आई एम एरोगेंट, आई वोंट लिसन टू यू, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे बात करने आ रहा हूँ, इट मीन्स आई एम वेरी एग्रेसिव कि हाँ बोलो क्या करना है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अब मुझे आराम से आपके साथ जब मुझे कन्वे करना है कोई मैसेज आपको, तो मेरे जेस्चर्स जो है ना वो बिल्कुल उसी के साथ अलाइन होने चाहिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ, अलाइनमेंट शुड बी देयर। Okay, yeah, this is really a great aspect what you are discussing about कि लोग जब अगर हम ज़्यादा आगे आ जाएं, पीछे जाएं, how it depicts। अब मुझे यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्यों लोग जो है हम लोग इन चीज़ों पे काम नहीं करते हैं, क्यों हम पेन नहीं लेना चाहते हैं, अदर देन कि जो चीज़ें हम डिस्कस करें कोई भी स्किल सीखने के लिए, what do you think may be the issue कि लोग जो है ना पेन नहीं लेना चाहते हैं। मतलब या यंग लोग जिनसे हम बात करते हैं, अपने भाई है, दोस्त है जो हमें अभी भी सुन रहे हैं, किसी से हम लोगों ने खुद भी बातें की है, बहुत लेजीनेस सा फील कर रहे हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है। व्हाट डू यू थिंक कि क्यों लोग इन चीज़ों पे काम नहीं करते हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है, अदर देन कि हम कम्युनिकेशन स्किल अभी पर्टिकुलरली डिस्कस करें, बट आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाई डोंट पीपल वांट टू टेक दिस पेन एक्चुअली। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा ऐसे सोचूंगा कि जो आपने बात की कि लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं ये चीज़, इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है जिसको हम बोलते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मुझे इससे याद आ रहा है कि जब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, तो यू टेंड टू डू थिंग्स जो बहुत ही ईजी हो, ठीक है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं यहाँ आया, तो यहाँ आने के लिए मुझे आई हैव टू ड्रेस अप लाइक, आई शुड बी लुकिंग लाइक हाँ कहीं पे जा रहा है, तो मुझे ऐसे ड्रेसअप करना। Wearing this dress, it is like coming out of my comfort zone. In winters. Very good. घर में मैं क्या था, ऊपर से कंबल भी था, रूम हीटर था, राइट, फैरन के अंदर कांगड़ी पकड़ी हुई थी और बैठ के था बिल्कुल। बट द मोमेंट आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे ड्रेसअप करना है, इट मीन्स कि आई हैव टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। और ये जो कंफर्ट जोन से बाहर आना है ना, दिस इज द मोस्ट, इसको हम बोलेंगे मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, यू हैव टू, आप कभी भी कुछ चीज ऐसे नहीं कर सकते हैं कंफर्ट जोन से बाहर, आपको रेवोल्यूशनाइज करना है अपने माइंड सेटअप। आप कभी भी ऐसा नहीं बताएंगे कि यार मुझे सब कुछ हासिल हो लाइफ में, मेरे स्किल्स मुझे खुद एनहांस हो, मैं कहीं भी चला जाऊँ। मतलब आप आंखें बंद करके अमेरिका के ख्वाब देख रहे हैं, या आप मतलब मुझे हज पे जाना है, आंखें बंद करके, वो वैसे ख्वाब नहीं होते ना, वो तो ख्वाब ऐसे हैं कि बस सोती नींद वाले ख्वाब है, वो तो आगे नहीं लेके जाएंगे। वो हम लोगों ने इससे पहले भी इस बारे में, यू नीड टू revolutionize your thinking. Absolutely. What is that revolutionize? How do you revolutionize that thinking? That is very important. वो कैसे करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, चीज़ें करना है। Even I just wanted to add one saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he said that, अगर उसका हम मफ़हूम या जिस्ट बताएं उस हदीस का, वो ये है कि बेकार नहीं बैठना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी कुछ करो। इट मीन्स इवन इफ यू डू समथिंग, इवन घर में कोई ऐसा काम जो कि आपको लग रहा है कि बेफजूल है, मतलब घर वालों को बेफजूल लगे, आप वो करोगे ना, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर रखता है। सो राइट नाउ इफ यू आर इन ए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, आप किसी पॉइंट पे हैं, किसी लाइफ के किसी स्टेज पे हैं, मतलब अभी आपके पास जॉब नहीं है, अभी आपके पास कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो जदोजहद करना छोड़ देना है। आपको जदोजहद अगर आपके पास कम्युनिकेशन वाला स्किल नहीं है, जब तक अल्लाह ताला आपको कोई हलाल रिज़्क अता फरमाए, तब तक आप अपनी स्किल्स की तरफ फोकस करें, अल्लाह ताला से मांगे और ये चीज़ें एनहांस करते रहे। डेफिनेटली अल्लाह ताला विल सी द एफर्ट्स, ही विल सी दैट दिस पर्सन डज हैव ही लर्न कम्युनिकेशन, ही डज फोकस ऑन अदर लैंग्वेजेस आल्सो, ही improved his body language, he worked on himself। यानी कि आपको खुद से भी प्यार तो करना है ना। जब तक आप खुद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी ज़ुबान का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आप दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते हैं। मतलब खुद हम बीमार हैं, हम बीमार को बोलते हैं हम आपको ठीक करेंगे,
ऐसा तो नहीं होगा ना कहीं भी। आप पहले खुद ठीक हो जाएं, खुद हम चीज़ों को ठीक करें, तब हम दूसरे को बताएंगे कि आपका हेल्थ खराब है, आपकी चीज़ें ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला विल डेफिनेटली हेल्प इन दैट एस्पेक्ट आल्सो। सो कंटिन्यूइंग माई टॉक, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ठीक है। जैसे आपने इन पॉइंट्स को ऐड किया माशाल्लाह। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो तभी आप चीज़ों को सीखोगे। अब कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर माइंडसेट। प्रॉपर माइंडसेट पे हमारे कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली जो हमारा कश्मीर है, यहाँ पे माइंडसेट के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? हाँ, इसके ऊपर मुझे और एक चीज़ याद आ रही है, कल का स्कैम। आपने देखा होगा, सुना होगा कि स्कैम हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अबाउट 59 करोड़ रुपीस का, बहुत ही बड़ा स्कैम है, ठीक है। यहाँ पे डिपिक्ट करता है कि हमारे जो कश्मीर के जो यूथ है ना, उनका माइंडसेट कैसा है। बिल्कुल उस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग जब ये हमारी जो यूथ जो है शॉर्टकट ढूंढ रही है, आपको हम लोगों को ये समझना है कि किसी चीज़ को कोई एम्पायर बनाने के लिए आपको 10 साल से कम नहीं लगेंगे। बिल्कुल। जो लोग ये शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना कि मैं 15 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, ये मतलब आई जस्ट इट जस्ट अम्यूजेस मी सीरियसली व्हेन पीपल गो एंड invest in such kind of fraudulent things, because it's a fraud. How there is no business that can give you such return कि आप इन्वेस्ट कर लो, 15 दिन में आपका पैसा डबल होगा, या 5 दिन में पैसा, या 2 साल में आपका पैसा डबल नहीं है। देर इज नो इफ सच अ थिंग। मैं आपको क्लियरली बताऊं, दिस इज जस्ट अ मैसेज दैट आई वांट टू पास ऑन टू ऑल द यूथ जो हमें सुन रहे हैं। द मैसेज इज वेरी क्लियर। एनी काइंड ऑफ जॉब पोर्टल जहाँ पे आप अप्लाई करते हो, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप कश्मीर में अप्लाई करते हो, इफ दे आर आस्किंग यू फॉर मनी, दैट्स अ स्कैम। सिंपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको जॉब दे रही है, उनको पे करना है आपको, बिकॉज यू आर गिविंग देम वैल्यू। समझ रहे हैं ना। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वो बोल रहे हैं कि आपको पहले इन्वेस्ट करना है, फिर आपको दूसरे, हाँ, देर आर अदर स्कैम्स ऑल्सो जो साथ में आ रहे हैं, जस्ट मेकिंग देम अवेयर कि आप किसी और बंदे को ला, पहले आप 3,000 दो, फिर आप, इट्स ऑल्सो ए स्कैम। ये भी स्कैम है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे पहले पैसे नहीं लेगा। Very simple. Any organization that will ask you for money is a total scam. Please understand it. I was in Delhi for 4 years. I worked there with we called this one of the elite colleges, like people from IITs, IIMs. I have worked with them. I can clearly tell you that how these people just identify how people are being scammed. और मेरे बहुत सारे दोस्त भी है, वो मुझे पता है क्लियर स्कैम है। कोई भी बंदा आपको पैसे मांगा, स्कैम है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दीज आर ऑल स्कैम्स। सो यहाँ पे ये जो स्कैम्स भी अगर हुए तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। सबसे पहले जब हम कम्युनिकेशन की भी बात कर रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है कम्युनिकेशन पे है। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा और डिग डीप करेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं 2 तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे जब आप ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, यानी कि खुद के साथ जो आप बातें करते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपने साथ जब कम्युनिकेशन की बात आती है, आप अपने खुद के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम आगे जाके पर्सनैलिटी पे भी बात करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से शेप होती है, ये डिपेंड करता है कि आप खुद के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। और जिस भी वे में आप खुद के साथ कम्युनिकेट करेंगे ना, उसी हिसाब की आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अब अभी हम बात कर रहे थे कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो कंफर्ट जोन से आप तभी बाहर आओगे जब आप अपनी विल पावर को उस लायक बनाओगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। आप अपने आप के साथ उस तरीके की बातें करोगे कि मुझे ये करना है, मुझे इसको ऐसे करना है। जैसे मुझे यहाँ आना था, तो यहाँ आने से पहले मैंने दिमाग में हज़ारों चीज़ें पहले इमेजिन की, हज़ारों चीज़ों को मैंने एनालाइज किया, मैंने विजुअलाइजेशन की, ठीक है, कि मैं वहाँ पे बैठा हूँगा तो मैं बात कैसे करूँगा वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें मैंने विजुअलाइज की। तो ये चीज़ें होती है जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। और कंफर्ट जोन में रहने की वजह, एक और वजह जो होती है वो होती है हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ी वजह बनती है हमारे कंफर्ट जोन की। प्रोक्रेस्टिनेशन होती है कि हम चीज़ों को ना डिले करते हैं, ठीक है। आपके पास डेडलाइन है, लेट्स सपोज कि 31 दिसंबर की आपके पास डेडलाइन है और आज है 21 दिसंबर, ठीक है। आप बोल रहे हो कि अभी मेरे पास 10 दिन है, आज नहीं कल करूँगा ये काम,
तो आपने इसको डिले कर दिया। जैसे आपने इसको डिले कर दिया, इट मीन्स कि यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ठीक है, जब कल वाला दिन आएगा, आपने सुना होगा ना वो कि जब हम 11th-12th में पढ़ते थे, घर वाले बोलते थे पढ़ाई नहीं करनी है, आज सैटरडे है, मंडे से स्टार्ट करेंगे। फिर घर वाले हमें बोलते थे कि इवन आज भी अगर आप किसी से पूछें कि सुबह आपने नमाज नहीं पढ़ी, बट आप जोहर से तो नमाज स्टार्ट कर सकते हैं, वो बोलेगा नहीं, कल से मैं फजर से स्टार्ट करूंगा। तो दिस इज ऑल व्हाट? प्रोक्रेस्टिनेशन। Not only that, it's someone is there that is helping you to delay all these things. That is, just diverting your attention. So ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो इट इज़ शैतान जो आपको बोल रहा है कि बिल्कुल आपके पास अभी टाइम है। जिस तरह से कुरान में भी है कि ये तब तक बोलते रहेंगे टाइम है, एंड जब मौत इनको पकड़ लेगी देन बस बिल्कुल तो ख़त्म हो जाएगा सारा। यही हम क्या बोलते थे कि अब मंडे से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें घर वाले बोलते थे वो मंडे तो कभी आती ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है, हम सारे इसके शिकार हुए हैं लाइफ में। ऐसा भी नहीं है कि अभी भी होते हैं कभी कभी, बट इट जस्ट नॉट दैट कि इसको अगर कोई इंसान, फिर हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हैबिचुअल ना हो जाए। इंसान हैबिचुअल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर मैं अपनी बात करूं, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं अभी देख रहा हूं मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे सोशल मीडिया है हमारे पास, इसकी भी बात हम करेंगे। सोशल मीडिया पे जब मेरी पिक आएगी ना, वो सबसे बेस्ट वाली आएगी। ठीक है, जब मेरा वीडियो आएगा सोशल मीडिया पे जो मैंने पहले 3 बार शूट किया होगा, तब जाके वो वाला आएगा। जो मेरी मिस्टेक्स है, जो मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो नहीं दिखेगी वहाँ पे। That's why mostly people, whenever they see social media, they go into that zone कि इनकी लाइफ परफेक्ट है। But that's not true. There is other aspect of life that's real. जब आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं ना, तो ये चीज़ें होती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, इसको आपको डील करना है। वहाँ जैसे प्रोमोडोरो ये टेक्निक्स है, इस तरह से कुछ और 5 मिनट्स की टेक्निक्स है कि आप बोलो कि ये वाली टेक्निक है कि आप टाइम को काउंट करो 5 4 3 2 1 एंड उसके बाद उठो और वो काम करो। ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसी तरह से जब आप स्नूज बटन लगाते हैं ना अलार्म पे, दैट ऑल्सो टेक्स यू टू द प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पास। आजकल इंटरनेट है हमारे पास, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन का। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स अगर मैंने अपने एनहेंस किए हैं ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर कि क्या होता है ना, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो आई हैव बीन आल्सो टू गवर्नमेंट स्कूल ओनली। कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में उतना फोकस नहीं करते हैं चीज़ों को लेके, कोई भी फोकस नहीं होता है कम्युनिकेशन का। है कि एक्सपोजर की कमी होती है, वो सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होता है। इवन जब मैंने अपना कॉलेज भी ख़त्म किया, लाइक व्हेन आई वेंट टू कॉलेज इन खानावल, वहाँ पे भी हम लोग ने बेसिकली, क्योंकि साइंस पढ़ते थे, हम लोग मोस्टली फोकस करते थे बॉटनी, ज़ूलॉजी और उन चीज़ों में, लैब्स में ज़्यादा थेरेटिकल एस्पेक्ट हम पढ़ते थे। बट इंग्लिश में हमारा उतना फोकस नहीं था, क्योंकि बात भी कश्मीरी में होती थी। हाँ, वो कन्वे करते थे हम लोग। लेकिन आफ्टर दैट व्हेन आई जॉइन MBA, तो फिर मैंने जब CMAT दिया, और CMAT के बाद फिर जब ग्रुप डिस्कशंस हुई, इन ग्रुप डिस्कशन आई वाज लाइक अमेज्ड। People were speaking so fluently, like mostly people from Srinagar. To be very honest with you, there were few people from South Kashmir. There was one of my friend who was from Pulwama and I was from Anantnag. तो हम लोग जब बात कर रहे थे, although we spoke टूटा फूटा, but we realized कि how far off we are from the reality during those times in Kashmir University, because when you see the environment around you and you saw that people are speaking so well, their body language, their confidence when they present something in front of you, and it was like it took me like 1-2 years to actually went on to learn things कि ये चीज़ें होंगी। एंड जब मैं दिल्ली चला गया, और आफ्टर दैट वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि इवन जो हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी बिजनेस स्कूल में भी हम लोग कम्युनिकेशन या इंग्लिश में जो बात कर रहे थे, दैट इज़ वेरी फार ऑफ। आपको सिटिल अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करनी है। सो द पॉइंट हियर इज़ that it doesn't matter where from where you studied. It doesn't matter from which kind of society you are, which environment you are from. If you have the will and you are ready to take that pain and learn those things, there is no stop for you, and you can do that and you can learn. When to make yourself to advance in present day age, it is important that you must have bunch of skills. Plus, you should adopt with
द एनवायरनमेंट। हमें बहुत सारे लोगों को, मैं फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि गलत फहमी है कि हम लोग ना वही दुनिया दीन बहुत कन्फ्यूजन में रहते। क्यों? उसकी वजह ये कन्फ्यूजन में वही रहेगा जिसको क्लैरिटी नहीं है, जिसको पर्पस नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि अगर मैं दोनों चीज़ों पे फोकस करूंगा दोनों मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, और दोनों है भी बेनिफिशियल, इसमें कोई शक नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ and if you are doing something good for your family, for your friends, for your for your society, it is automatically benefiting you for the akhirah. ऐसे भी हमें प्रॉफेसर वसल्लम की जो लाइफ है उनसे ये एग्जाम्पल मिलते हैं कि बहुत सारे सहाबी जो बहुत ही अमीर भी थे और वो बेनिफिट, उनका बेनिफिट सोसाइटी को भी आया, हमारे रिलीजन को भी उसका फ़ायदा आया। सो आफ्टर ऑल the purpose should be linked even what we are here for. So जब वो होगा तो then when people will realize, when all of our friends जो हमें सुन रहे हैं जब ये realize करेंगे कि ये सारा important है, education important है, communication skill सीखना important है, bunch of skills को जमा करना और फिर सीखना वो important, जब वो realize करेंगे ये benefit इस दुनिया में और आखिरत में भी हमें करेगा। Isn't that great for all of us? Absolutely. तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अब जब, क्योंकि मेन फोकस जो हमारा होता है किसी भी यहाँ पे जो भी हम चीज़ें करते हैं उसको हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी हम उसको देखते हैं। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। एक चीज़ कम्युनिकेशन, ये इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स बताता है कि कुरान भी हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पॉर्टेंस को उजागर करता है। कुरान भी हमें साइंस देता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखो। क्यों? देखिए, जब अल्लाह ताला जब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं क्या फ़िरऔन के पास जाएं और उन्हें मेरी ये मैसेज पहुंचाए, तो यहाँ पे अब सेंडर कौन है? अल्लाह ताला है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी यहाँ पे तो जो अल्लाह ताला की मैसेज है वो एज इट इज़ फ़िरऔन तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? वो दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ मांग रहे हैं? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ करने के बाद अपने लिए अल्लाह ताला से बोल रहे हैं कि जो हारून अलैहिस्सलाम है इनको मेरे साथ भेजिए, इनको मेरे साथ भेजिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो फसीहत है, फ्लुएंसी है, वो बेहतर है मुझसे। लेकिन यहाँ पे आप ये बात देखिए, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि ये जो मैसेज है ये मैसेज कितना इंपॉर्टेंट है और ये मुझे किसके पास लेके जाना है। और इसमें अगर बीच में थोड़ा सा भी क्या आ जाता, इनइफेक्टिवनेस आ जाती, तो एक्यूरेट मैसेज नहीं पहुँचता फ़िरऔन के पास। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले क्या मांगते हैं? रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे दिल को खोलिए। जब आप सीना, ये जो सीना है ना, ये सीने की खोलने के लिए दुआ मांग रहे हैं। जब आप पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जब आप लोगों से बात करेंगे ना तो वो बोलेंगे कि वी हैव द फेयर होता है। वो फेयर कहाँ से होता है? यहाँ सीने के अंदर फेयर। तो मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले यही दुआ मांग रहे हैं कि मेरे सीने को खोलिए ताकि ये जो फेयर है ये बाहर आ जाए। फेयर बाहर आ जाएगा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, नाउ मेक दिस ईजी फॉर मी। इसको आप मेरे लिए बहुत आसान बना दीजिए। और ये आसानी कैसे आ जाएगी? जब आपके अंदर जब ये फेयर बाहर आ जाएगा, जब आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी, जो मैसेज आपको पहुंचाना है वो मैसेज आप अच्छी तरह से ग्रैस्प करोगे उसको। उसके बाद फरमाते हैं वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब मेरी जो ज़ुबान है इसको फ्लुएंसी दे दीजिए ताकि जो मुझे मैसेज फ़िरऔन तक पहुंचाना है वो एज इट इज़ वैसे ही पहुंचे जैसे आप और मैं यहाँ पे हैं। अब अगर मेरे मैसेज के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, जिसको हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, तो इट ब्रिंग्स मी टू 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 7 C's में सबसे पहले है क्लैरिटी। आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी बात आप करने जा रहे हैं तो क्लियरली आपको वो बात बोलनी है। ऐसा नहीं कि मोस्टली हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स ऐड करते हैं ना दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। वो क्लैरिटी नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कि आपने इसको ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे ही बनाया है। इसको क्लैरिटी होनी चाहिए। देन देयर इज़ कोहेरेंस। ठीक है, इट शुड बी, बिल्कुल कोहेरेंस होनी चाहिए उसमें, यानी कि आपको लगना चाहिए कि ये लॉजिकली भी ठीक है। ठीक है, देन इट शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंस आ गए। देन इट शुड बी कंक्रीट होना चाहिए, वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स होने चाहिए। आप अगर कोई फैक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक बात करी थी, मॉन्स्टर के सर्वे की बात करी थी, तो अगर मैं उस फैक्ट को एज इट इज़ ऐसे ही बोलता, ऑब्वियसली आज हमारे पास कम्युनिकेशन है, सब लोग देखेंगे कि इसने ये सही बोल है कि नहीं है, इसमें बिल्कुल हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो कंक्रीटनेस आनी चाहिए आपके कंटेंट में। देन देयर इज़ वन मोर सी, फोर्थ वाला जो इसमें सी है वो है कंप्लीट।
जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं इट शुड बी कंप्लीट, इट शुडंट बी इनकम्प्लीट कि आपको फिर सोचना पड़े, कि आपको गुमान लगाना पड़े कि हाँ ये शायद ये चीज़ें बोल रहा था। हवा वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट, इट शुड बी वेरी कंप्लीट, ठीक है। इट शुड बी कर्टियस। कर्टियस मीन्स कि इखलाक होनी चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं ना तो इट शुड डिपिक्ट कि आप मॉरली, बिल्कुल मॉरली आप सॉफ्टली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट शुड बी कर्टसी। तो इसके बाद आ जाता है 6 पे आ जाते हैं हम, तो कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट आपको बात करनी है, आपको बात घुमा के नहीं लानी है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि हम बात कर रहे होते हैं किसी से तो वो बोलता है भाई मुझे पता बोलना क्या है चाहता है, तो वो होना चाहिए कि कंसाइज होनी चाहिए आपकी बात। बिल्कुल पका दिया है इसने, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंसाइज और इट शुड बी करेक्ट। बिल्कुल आप जो भी बात बोल रहे हो ये बात सच होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो हाँ यू आर पासिंग ऑन मैसेज, और ये आपकी क्रेडिबिलिटी दिखाता है, आपकी अथॉरिटी दिखाता है, कि आपकी ऑनेस्टी दिखाता है। और कम्युनिकेशन में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि इसके वाई के ऊपर, कम्युनिकेशन का वाई ये भी है कि आपको अपना ट्रस्ट जो अर्न करना पड़ता है ना, ट्रस्ट, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिल्कुल ये उस पे भी हम आएंगे। तो ये जो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से आती है। अब हम आएंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, होस्ट बन रहे हैं आप, ठीक है, और आपका जो गेस्ट होता है और आपके जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, किस तरह से आप इनको इंटरेक्ट करवाते हैं एक दूसरे के साथ, आपका क्या लगता है कि इसके अंदर कितना फ़ायदा दिया है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ने इस चीज़ के अंदर, कि आप इफ़ेक्टिवली एक टीम को मैनेज कर पा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पा रहे हैं, और ये जो सीरीज़ है इनको आप चला रहे हैं? हाँ राइट। सो देखिए कम्युनिकेशन जो है इन बिटवीन और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन ए टीम या जैसे विद इन होस्ट एंड द गेस्ट, कम्युनिकेशन इसमें जब भी आप किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप का एक फैक्टर आ जाता है। जब आप किसी बंदे से, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बात की, आई डिडंट मेक यू फील दैट यू आर माई गेस्ट, आई डायरेक्टली फेल्ट लाइक कि आपको ऐसे बिहेव करना, जैसे आपने कर्डियल होने की बात की, यू डायरेक्टली सेड कि दैट वी आर द सेम, here is no one is what we call a superior inferior kind of a thing. Now you directly go, we are the same, we are humans, directly, irrespective of where from you are and who you are, irrespective of even I am clearly telling in communication what's also important is irrespective of the person which religion he belongs to, that particular person, if I am a person, जो दूसरा बंदा मेरे पास आ रहा है वो किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, ऐसा फील नहीं कराना है कि माई रिलीजन इज द सुपीरियर वन एंड yours is not. That should not be, because it will feel, that person will automatically feel, जिसको बोलते हैं ना कुदरती तौर उसके दिल में ये चीज़ आ जाएगी। हाँ उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने आप को कुछ समझता हूँ। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपने ट्रस्ट, जब आप किससे बात करते हैं, आपको जब वो ऑनेस्टी के साथ बात कर रहे हैं, इनोसेंस के साथ बात करते हैं, आपका कोई मोटिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस इंसान को मैं फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, या इस इंसान को मैं किसी मेरे टाइम के लिए, चलो यार मेरा टाइम पास हो रहा है मैं इसको उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। मीन यू डोंट हैव दैट इंटेंशन, और वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी जेस्चर्स पे रिफ्लेक्ट होता है, दैट द अदर पर्सन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड्स, वो आपको अंडरस्टैंड करता है। दूसरी चीज़ जो टीम कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी। आप अपनी टीम के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, आप उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ हमें करनी है, ये हमें करना है, ये नहीं करना है, इसकी वजह क्या है, आप उनको बहुत ही क्लियर कट चीज़ें बता रही हो कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और ये चीज़ हमें क्या फ़ायदा देगा, नुकसानात क्या देगा, हमें ये चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ क्यों करनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट जब वो सारे उनका कंसेंट आ जाता है, देन वी कम टू ए कंक्लूजन कि ये चीज़ हमें ठीक होगी और इससे हम चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप गोज़ वेल। लेट्स से मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। सो विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात करें। आप जब उनसे कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके साथ आपकी बात सुनते हैं, और वहाँ से उनका कोई पॉइंट आ जाता है, आप अच्छे से सुनते हैं, उनको बताते हैं, फिर उसको समझते हैं, समझने के बाद आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं। जब आप अपने स्पाउस की बात सुनते हैं
और उसके बाद आप ये कंक्लूजन समझने अंडरस्टैंडिंग के बाद उसका आंसर कर लेते हैं विद कंप्लीट क्लैरिटी कि ये चीज़, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा आपको बातें बता रहा है ना, वो आपको अपना कॉन्फिडेंट समझने लगता है कि दैट ही इज़ द पर्सन हु लिसन्स टू मी, ये मुझे सुनता है, समझता है, और समझने के बाद मुझे समझाता भी है और रिस्पॉन्स अच्छा देता है, जिससे वो अपोजिट वाला बंदा जो है ना, वेदर इट्स योर हस्बैंड और वाइफ, वो अंडरस्टैंड कर लेता है। और उससे क्या आ जाता है, उनके जो गैप्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या हो जाते हैं, वो एक कंप्रोमाइजिंग चीज़ें पे आ जाते हैं। जब वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है और उसमें क्या आ जाते हैं, दोनों में खुशी और रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत हो जाती है, रादर देन कीपिंग इट लिंगरिंग कि मेरे दिल में कोई चीज़ है, मैं पासा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा जो है वो मेरी सुनता नहीं है। एंड इट इज़ लाइक वाइस वर्सा अगर ये हुआ, तो आई डोंट थिंक सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विल work in the future, because there is a communication gap, there is lack of transparency, there is lack of trust, और ये सारा जो फैक्टर है ये कम्युनिकेशन की ही वजह से होता है। और every one of us, whether he is a young guy or an elder or married, unmarried, should understand that communication plays a vital role in building or what we called as building the relationships. Relationship को बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स की जब बात आती है, वी टेंड टू बी लाइक कि ये जो आगे वाला बंदा है ना, इसको खुद समझ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर अ ह्यूमन, आई एम ए ह्यूमन। ठीक है, आगे वाला जो बंदा है उसको खुद से नहीं आएगा समझ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। सो यू हैव टू बी लाइक दैट कि वट एवर यू वांट फ्रॉम अदर पर्सन, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट। If you want love, you have to express that I need love. If you want him to be listening, to lend you a listening ear, अगर आपको चाहिए कि ये मुझे सुनना चाहिए, तो you have to express him that I need you to be a listener at right now. ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल दी कि ऑर्गेनाइजेशन में या टीम बिल्डिंग में, तो जब तक एक टीम में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बीच में जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हो सकता है, लेकिन हमें फोकस रखना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि जो आप चीज़ें उनसे करवाना चाहते हैं ना, लेट्स सपोज यू आर अ टीम लीडर या आई एम ए लीडर ऑफ एनी टीम, सो आई वांट देम टू डू वर्क ऑन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो अगर मैं उन तक वो बात ही नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, जो बात मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ या जो काम मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ, वो गाइडलाइंस उन तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, तो वो कैसे वो काम करेंगे। इसके ऊपर भी रिसर्चेस हुई है, इसके ऊपर भी सर्वेज हुए हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ से कहा गया है कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है आपके लिए, कि क्यों प्रोजेक्ट डेडलाइंस ये पूरी नहीं हो रही, क्या हो रहा है। तो दे सेड कि जो हमारे टीम लीडर्स होते हैं उनमें से अराउंड 28 और आई गेस 27% इट इज़, उन्होंने कहा है कि जो हमारे टीम लीडर्स हैं वो इफ़ेक्टिवली हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम डेडलाइंस मिस करते हैं, हम प्रोजेक्ट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें को, रिलेशनशिप्स को अगर आपको एनहेंस करना है, आपको अपने भाई के साथ रिलेशनशिप को एनहेंस करना है, यू हैव टू बी वेरी काइंड टू हिम। जैसे इस्लाम में भी है कि आपको काइंडली पोलाइटनेस होनी चाहिए। जैसे आपने किसी से कुछ मांगना है तो आप जाओगे उसको, ये यहाँ दो, ठीक है, दिस इज़ लाइक बीइंग एग्रेसिव, यू डोंट टॉक लाइक दैट। तो जब आप किसी के पास जाएंगे, क्या आप मुझे ये पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है, क्या आप मुझे ये पास ऑन कर सकते हैं, कितना फ़र्क है, आसमान ज़मीन का इसमें फ़र्क है, ठीक है। तो आपको किसी से मदद चाहिए, मेरी मदद करो, एंड यू विल बी लाइक क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद कर सकते हैं, and he will be really happy to help you. So ये चीज़ें हमें this is really ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है साउथ कश्मीर में। मोस्टली कश्मीर में अभी भी हम मतलब लोगों को देख रहे हैं बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं। इसकी वजह यही है कि मे बी देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो इसका इम्पैक्ट हो सकती है, बट द वे पीपल आर कम्युनिकेटिंग नाउअडेज इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लाइक बहुत ही जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, जैसे आपने पहले भी एक बात बोली थी कि क्यों यहाँ पे लोग ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते। देखिए, ये एडुकेट्स होते हैं, इनको हम एडुकेट्स भी बोलते हैं, या जो गेस्चरिंग होती है, ठीक है, या ये चीज़ें जो इनको सीखना पड़ता है। अब जब इनको आप सीखोगे ना, तो आपको प्रैक्टिस करना है इनको। जैसे ये जो हैंड्स है ना,
इन हाथों को ऐसे ही नहीं हिलाना है कि ऐसे ऐसे करते रहो। मैं अगर पूरे यहाँ पे बैठ के हाथों को ऐसे ऐसे करूँगा तो आप भी क्या हो जाओगे, आप बोलोगे यार ये क्या कर रहा है, इट विल लुक लाइक इरिटेटिंग। सो यू हैव टू फोकस योर बॉडी, और आपकी जो इंटरनल बात कर रहे हैं तो इट शुड बी अलाइंड, ये चीज़ें अलाइंड। इस पे मुझे और एक चीज़ याद आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस में बताया है कि उसका मफहूम जैसे ये है कि आपके पास अगर कोई भाई आ रहा है आपका, और वो आपको कोई बात बोलने जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कि वो पहले एक साइड से देख रहा है, फिर दूसरी साइड से देख रहा है, फिर तीसरे, फिर जाके आपको बात बता रहा है, तो इट डिपिक्ट्स कि ये बहुत ही सीक्रेसी वाली बात है, सीक्रेट बात है जो ये आपको बोल रहा है ताकि आप किसी और को ना बोलो, ठीक है। या पोस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहा है कि कोई सुन तो नहीं रहा है हमारी बातें, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, आपको अपने जेस्चर्स पे, अपने पोस्चर पे, जैसे मैं अगर ऐसे बैठ जाऊँ ना, ये जो पोस्चर मेरा है, पोस्चर चेंज हो गया, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके शोल्डर्स किस तरह से हैं, आपका जो चिन है ये अप होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, इट शुडंट बी लाइक दिस कि आई एम लुकिंग एरोगेंट, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल इज़ वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप जिसके साथ बात करो, इफ़ इट इज़ 1-on-1 कम्युनिकेशन, आपका आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर आप कैमरा पे बात कर रहे हो तो कैमरा में आपको कैमरा की तरफ देखना है, इट शुड डिपिक्ट कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारा सारे जो बातें हमने की ना, इस सारे का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करें कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, नॉट जस्ट इन आवर करियर एडवांसमेंट, नॉट जस्ट इन आवर रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट इन एनी अदर एस्पेक्ट्स जिन पे हमने बात की, बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ के हर किसी एक पॉइंट में इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो हमें इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। जैसे हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इफ विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस कम्युनिकेशन स्किल, इट विल टेक अस टू lot of aspects, because we think every single skill is very important and it has an impact on your life. और मुझे लगता है communication बहुत ही important है. It does not only help you in speaking, it also aligns your body with what you speak, and also it builds your relationships. Not only in that, it builds your confidence, it helps you in public speaking, it makes you an orator. There are lots of aspects associated with communication skill. So if you'll continue talking about that, I don't think that we'll be able to conclude this topic anywhere soon. So but I just wanted to conclude it from you, just make it a conclusion, like what are the aspects, what are the sources that can जो हमारे दोस्तों को हेल्प करे कि ये चीज़ें, ये चीज़, लाइक जैसे यूट्यूब हुआ, ये रिसोर्सेज है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, they can also contact us, so that we can kind of help them to channelize their efforts. उसमें हम उनको help कर सकते हैं. I want you to just conclude it in that aspect, so that our young friends will understand it. बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स अ वेरी वास्ट डोमेन, आई शुड से इट्स अ वास्ट डोमेन। तो अगर हम इस पे आप बात करते जाएंगे तो इट विल टेक मच ऑफ आवर टाइम, और हमारी ऑडियंस भी फिर ज़्यादा बोर हो जाएगी। सो टू concise it, to make it compact, to sum it up, I will say communication skills, हमने इसकी इम्पोर्टेंस अब उस पर हमने बात की कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। तो यहाँ पे अब लास्ट में मैं इसका एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, ठीक है। जब अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल करना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है, तो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूज़ किया। उसके बाद जब उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, ठीक है, तो इट वॉज अ कम्युनिकेशन, एंड इट स्टिल इज़ अ कम्युनिकेशन, क्योंकि हम कुरान को पढ़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज इट इज़ वो जो भी वही हो रही थी वो सहाबा तक पहुँचाया, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, ठीक है। एंड देन सहाबा ने ताबईन तक, तबा ताबीन से, और चलते चलते हमारे तक आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ अब आप देखिए कि कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैसेज आता है, और एज इट इज़ बिल्कुल हूबहू वही मैसेज हम तक पहुंचाना, ये बहुत ही ज़्यादा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
ठीक है, कि सहाबा जब वहाँ पे बैठे होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात कर रहे होते होंगे तो कितना ज़्यादा उन्होंने अटेंशन पे किया होगा कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं. इवन जब मैं फेशियल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा था तो हमने हदीस में भी सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता था कि कब गुस्से में है और कब इनको गुस्सा नहीं है. ठीक है, उससे भी पता चल जाए. तो यहाँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी हमें पता चलता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अब और एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट में मैं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं. तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, हर कोई पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है अगर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है. आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करना है, दैट इज़ द फर्स्ट मोर प्रायोरिटी. देन आपको अपना वाई ढूंढना है, आपको क्यों करनी है पब्लिक स्पीकिंग. देन आपने अपने अंदर का जो डर है ना उसको बाहर निकालना है. अब अगर इस पे हम बात करने बैठ जाएंगे इट विल गो अलॉन्ग. ठीक है, सो टू कट इट शॉर्ट आई विल प्रोवाइड यू विद सम इनसाइट्स और सम सोर्सेज जहाँ से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट फॉरमोस्ट जो सोर्स है हमारा वो है यूट्यूब. यूट्यूब पे सब कुछ रेडीली फ्री में अवेलेबल. You just need to take an advantage. Okay, yeah, we all have internet connection. So from YouTube, I have started from 2014. Since then, I have started working on my communication skills, and right now I am learning as well. I have in recent past I have attended 3 workshops on public speaking and communication skills. ठीक है, so it's YouTube. Foremost is YouTube. Then second one is we have really very good people who are good at public speaking, who are good at communication skills. Even in our Kashmir, we have such people. So if our audience wants to learn from them, they can contact us, we can provide. We have very beautiful books on communication. You can search online, there will be plenty of books that are written on communication skills. And foremost, we have the biography of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. We can read that. That has a tremendous lessons about public speaking, about communication skills. And then we have Quran. Okay, these are some sources from where we can learn effective communication skills. And yeah, this is most important. After using these resources, if you are not practicing it, it's of no use. You have to practice it. You have to listen. You have to read plenty of books, and you have to practice. You have to listen podcasts. If you can't listen to anybody, listen to podcasts. Listen. We have podcasters on Inspiring Corner. You can listen to our podcasters. You have to read a lot. You have to write a lot. Because the clarity we were talking about in the 7 C's, that clarity comes from writing. The clarity that I have with me, it's just because I have started journaling way before in my college. Yeah, I have started journaling. The more you journal, the more clear you become, and your purpose becomes very clear. It's just like your window is very foggy, and just you are rubbing it with some cloth and it looks very finished. That's what journaling gives you. So these are the steps, you have to follow them. Even if you are using resources, even if you have a mentor, even if you are reading or writing these, doing all of these things, then you are not practicing it. You are not doing on a daily basis this thing. You will not be able to communicate effectively. You will not be able to learn this skill. This skill needs your patience. First, more important is patience. You need to be very patient to learn this skill. See, when I'm speaking, it comes with the flow. Then first, when you will start learning communication skills or learning English, you will fumble. आपको बात करने भी नहीं आएगी. ठीक है, आप फंबल हो जाओगे क्योंकि आपके पास वर्ड्स नहीं है. सो यू विल राइट, यू विल लर्न. सो जितना फिर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू प्रैक्टिस इट, द मोर बेटर यू विल गेट एट इट. एंड रिमेंबर, whoever is the perfect in his in whatever work he is doing is perfect. He was first a beginner. Right. So you have to start from a beginner, and that's what we today wanted to convey to our youth, especially to our youth, that nothing is unlearnable. Everything is learnable. You can learn anything, whatever you want, you can learn it, but it needs a proper mindset. You have to set your mind to learn that thing. You have to enhance your thinking skills to learn those things, and inshallah Allah Ta'ala फिर
इतने रास्ते खोलते हैं कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप यहाँ तक कहाँ से पहुँचे, ठीक है। तो मेरे लिए दिस वॉज अ बिग ड्रीम टू कम हियर। जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो आई वॉज लाइक कि मैं इनके पास कब जाऊँगा, मैं इनसे कब मिलूँगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब अपने आप पे ऊपर अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, दैट्स व्हाई आई एम राइट नाउ हियर, ठीक है। तभी मैं यहाँ तक आ पहुँचा। तो इसी तरह से आपके पास भी गोल्स होंगे, आपके पास भी ड्रीम्स होंगे, एस्पिरेशंस होंगी कि हमें कहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए काम कीजिए। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाइए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत रास्ते खोलेगा। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू दैट आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने के लिए और आपसे बात करने के लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि हाउ हैप्पी आई एम कि आई वॉज एबल टू टॉक विद यू, शेयर माई आइडियाज़ विद यू। एंड ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ सिखाने आया था, इट वॉज लाइक कि मैं सीखने आया था यहाँ पे। एंड आज मैं यहाँ से आज मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई विल कंटिन्यू माई जर्नी, क्योंकि हमें आने से लेके जाने तक का सीखते ही रहना है। सो दैट शुड बी आवर प्राइमरी गोल, दैट वी विल ऑलवेज बी लर्निंग। थैंक यू सो मच। Before going to end this conversation, so as you rightly said that communication is very important in every aspect, not only in making one's personality look really confident, and it also helps you in building your public speaking skills. It helps you in building the relationships within the family and outside when it comes to networking also. हम अपनी यूथ को बस यही बताना चाहेंगे, मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं कि कोई भी स्किल जो है वो आप ऐसा नहीं है सीख नहीं सकते हैं, बस आपका विल पावर चाहिए, आपका जो शौक़ है वो होना चाहिए, और साथ साथ शौक़ के साथ आपको मेहनत करने का बहुत बहुत ज़्यादा पैशन होना चाहिए। और उसके लिए जब इंसान को ज़िंदगी में कुछ करना होता है, आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन हम सबको सीखना चाहिए, हर एक इंसान को सीखना चाहिए, particularly the youth of South Kashmir. We are really behind it. So it's a request for all of us to learn it and think about it. To end this talk, I would like to thank you for accepting our invitation and coming here. It pleases me to see people and young people like you to speak the way you spoke and the knowledge you have. It was really I will say it was a pleasure to have a conversation with you, and we'd like to continue our conversation in the future also for our skill development series. And inshallah we are this was our second, and inshallah it will continue to do this. Thank you so much for coming and accepting our invitation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jaza. Thank you, brother. Thank you for coming.